Good morning, students. Good morning, Shruti Good morning, sir. Sharma. Good morning, Chaitanya. Okay. Good morning. Just today's normal checks for the hardware working. So, am I audible? Yes, sir. Is my voice Yes, audible? sir. Good. Okay. Just the yesterday's absentees. Hemant Meena was absent yesterday. There is someone who has joined with the name Krishna Yadav. Okay, I don't know who is the student from our class. Then Kartike Burghate was absent. Krishna and Manasvi Ekare. And both are not receiving my call also. When I used to call. Parag Bambule. Parag Bambule was also absent yesterday. Then, just a minute. Shiv Roy. Good morning, sir. Shiv Roy. Where is Shiv Roy right now? If he is in your contact, please ask him, okay? Then Yes, sir. Vedant Valki. With Chaitanya, tell Shiv Roy, okay, to join the class. Okay, sir. I will message him. And then is some reason for Vedant Valki, so he may not be able to join for 3-4 days more. Then Prajwal Panghate. Prajwal Panghate, he might have joined with another mobile number. Just a minute. Puja Vidhate is present. Yes, Prajwal Panghate has joined with another number. Chaliye. Okay. So those who were absent, okay, it is not good. And even if you need to be absent, need to be absent in a sense that you are going out of station, you would not be able to join the class. So at least send a message in chat box, okay? For these many days, I may not be able to join the class. Is it clear, dear students? Hello? Yes, sir. Okay. If you people may not be able to join the class for few days or maybe even for a one day. Hello? Good morning, अरे sir. ये कल एब्सेंट था. ठीक है चलिए. Okay. So let us continue the section where we have left in yesterday's session. Just a minute. Yes, so is the textbook visible, dear students? Yes, sir. Is the sir. textbook visible? Yes, sir. Very good, very good. Yes, sir. So all of you please use the headphone. मुझे जहाँ तक अंदाजा है यदि हम लोग हेडफोन यूज करते हैं तो वॉइस लेवल भी अच्छा रहेगा और मेरी तरफ उतना फ्लक्चुएशन ऑफ साउंड भी नहीं आएगा. ठीक है, एक दो बार करके देखना. व्हाट वुड बी द बेस्ट प्रैक्टिस, ओके? बिकॉज ये सिचुएशन थ्रू आउट द ईयर शायद कंटिन्यू रहेगी. सो वी हैव टू वर्क ऑन our practices, okay, on using these instruments. Chaliye. So we were discussing on the arguments for democracy. That section was going on, okay, and we might have completed this. Democracy improves the quality of decision making. Is it so, dear students? This was the last point that we have discussed till yesterday. Kia Reddy. Soumya Soni. Yes, sir. What? Yes, sir. What do you want to tell by saying yes, sir? I have asked, was this the last point that we have discussed in yesterday's session?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. प्रतिभा पांडे, sir. ये वाला लास्ट पॉइंट था ना जो हमने कल डिस्कस किया था। Yes, sir. यस सर। ध्यान में आया या भूल गई? चलिए, कोई बात नहीं। So let us continue the section where we have left yesterday. So that was the last point. Okay. Now, so that second argument is now give birth to the third argument. Give birth to the third argument means जो हमारा second argument था कल का, ठीक है, democracy improves the quality of decision making. So जब quality of decision making इम्प्रूव होती है, यानी डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छी है, क्वालिटेटिव है, तो उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन किस पर आएगा? थर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज द थर्ड आर्गुमेंट? द थर्ड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज this: what the democracy provides a method to deal with differences and conflicts. ठीक है? So what is this argument? Parag Bambole, read out the argument. Parag Bambole, read out this argument. गायब हो गया। Yes, Purva Parkhi, read out this argument. Yes, sir. Read this. Democracy provides a method to deal with difference and conflict. Okay, democracy provides a method to deal with differences and conflicts. अब इस आर्गुमेंट का मीनिंग क्या है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। सो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अभी हम जो चीज पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ क्या मीनिंग है, ठीक है। तो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। सो डिफरेंसेस मतलब मतभेद, विचार अलग अलग हैं। तो लोगों के विचार कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान, इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री। इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री, है ना। इंडिया जो है, हमारा जो देश है, वो एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा देश है। तो जब किसी एक मैटर पर, किसी एक इशू पर डिबेट और डिस्कशन होता है कि भाई हमें ये काम करना है, इस काम को करने का हमें डिसीजन लेना है, ठीक है, तो इतना बड़ा कंट्री है, तो उस मैटर को लेकर के कंट्री के सिटीजन्स के बीच में विचारों में क्या होंगे? डिफरेंसेस होंगे। जैसे आपकी क्लास का यदि सिनेरियो बना है ना, कि मान लो स्टैंडर्ड 9th A और 9th B के स्टूडेंट को ज्वाइन कर दिया जाए और अब उनसे बोला जाए कि भैया इस मैटर पे कुछ करना है, तो क्या होगा? सभी स्टूडेंट्स के विचार, सभी स्टूडेंट्स के जो विचार हैं वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, है ना। शांभवी कहेगी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। पूर्वेश कहेगा ये बात तो ठीक है पर इसमें ऐसा और कर दें। शिव रॉय कहेगा अरे यार मेरे को समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं ऐसा करें। सो व्हेन एनीथिंग इज टू बी डन, कोई काम करना है, एंड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन, they are supposed to be affected by that particular condition, then what will happen? क्या होगा उस स्थिति में?
डिफरेंसेस होंगे, विचारों में क्या आते हैं, डिफरेंस आते हैं। संध्या, यहां तक बात आई समझ में? यू आर नॉट ऑडिबल संध्या। गौरव? Sir, now audible? हाँ, नाउ ऑडिबल। चलिए, सो लोगों के विचारों में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। जब डिफरेंस होंगे तो ज्यादा तू तड़ाक होगी, ज्यादा तू तड़ाक होगी तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद जन्म लेगा। अरे वाह, मेरी बात नहीं मानी, है ना? उन्हीं लोगों की बात हमेशा मानी जाती है। तो क्या होंगे, डिफरेंसेस होते हैं, और डिफरेंसेस के कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहां तक बात आई समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस, है ना? तो जब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बाकी के जितने भी अवेलेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, डेमोक्रेसी को छोड़कर बाकी का जितना भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, रिमेनिंग जो गवर्नमेंट्स हैं, डेमोक्रेसी को छोड़कर बाकी की जो अदर अवेलेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें ये विवाद, ये डिफरेंसेस खत्म करने का कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम नहीं है। जैसे मोनार्कियल रूल है, राजा ने जो आदेश दे दिया वो फाइनल, जबकि लोगों के बीच के डिफरेंसेस और विवाद अभी खत्म नहीं हुए। ठीक है, डिक्टेटर ने जो कह दिया सो सही है। डेमोक्रेसी क्या करता है, इट प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस इन कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी देश के नागरिकों को अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए पूरा मौका प्रदान करेगी कि आप अपने डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर लें, सुलझा लें। यानी आप बातचीत करें, डिबेट करें, डिस्कशन करें। किसी पॉइंट पर यदि आपको कोई आपत्ति है, कोई कंफ्यूजन है, तो उस पॉइंट को, उस इशू को उसी समय क्लियर कर लें, सो दैट जब फाइनली क्या होगा, हम किसी मैटर पर डिसीजन लेंगे तो वो मैटर सारे विवाद, सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बाद लिया जाए। So in this sense, a democracy provides a method to deal with differences and conflict. Okay, so in any society, people are bound to have differences of opinion and interest. ठीक है, so लोगों के बीच में क्या होते हैं, किसी भी ओपिनियन को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर के डिफरेंसेस होते हैं, विचारों में मतभेद होता है। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. Okay, if we talk about our country India, in case of India, these differences are sharp. Sharp मतलब बहुत ज्यादा गहरे हैं। ठीक है, डिफरेंसेस, विचारों में मतभेद इतना ज्यादा है कि कोई भी एक दूसरे की बात आसानी से मानने को तैयार नहीं। So people belong to different regions, speak different languages, practice different religion and have different caste. They look at the world very differently and have different preferences. इसलिए हिंदुस्तान के लोगों के विचार कैसे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक, sometimes the preferences of one group can clash with those of other group. और इसलिए कई बार क्या होता है कि किसी एक ग्रुप का जो प्रेफरेंस है, कोई एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो चाहता है, वही बात दूसरे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को मंजूर नहीं होती। ठीक है, देन हाउ डू वी रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट? इस प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय ब्रूटल पावर। ठीक, तो विवाद, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद या झगड़ा। नारायण मुक्के, मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
Narayan, are you able to listen my voice? Okay, ठीक है. पृथ्वीराज, okay, so the conflict can be solved by brutal power. अब यदि विवाद है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. पहला तरीका क्या है? ब्रूटल पावर, ताकत के दम पर कुचल दो. अच्छा, हमारी बात नहीं मान रहा, दे दनादन 4-5 खींच के मारे. दैट इज व्हाट ब्रूटल पावर. तो लोग यदि विवाद कर रहे हैं, झंझट है, तो क्या करो? ताकत का इस्तेमाल करो और उनकी आवाज दबा दो. So whichever group is more popular will dictate its terms and other will have to accept it. इस कंडीशन में क्या होगा? जो ग्रुप ज्यादा पावरफुल होगा, जो ग्रुप कैसा होगा? ज्यादा पावरफुल, will dictate its term, वो अपनी शर्तें मनवाएगा और बाकी के ग्रुप को क्या करना है? उसकी वो शर्त, उसकी वो कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बट that would lead to resentment and unhappiness. निश्चित रूप से आवाज दब जाएगी, लोग चुप बैठेंगे, परंतु वो खुश नहीं होंगे. So use of power to resolve the conflict always resulted into resentment and unhappiness. जब कोई विवाद हो रहा है और उसको ताकत के दम पर खत्म किया जाएगा, तो जो लोग उस पर्टिकुलर इशू से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, वो क्या होंगे? नाराज होंगे, अनहैप्पी. डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे. इस तरीके से यदि विवाद को ताकत के दम पर हल किया जाए तो क्या होगा? जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वो लंबे समय तक एक साथ जीवित नहीं रहेंगे. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. इस टाइप की समस्याओं का पीसफुल सॉल्यूशन ओनली और ओनली किसमें पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल इन डेमोक्रेसी. ठीक है, सिर्फ कहाँ पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल इन डेमोक्रेसी. ठीक, in democracy no one is a permanent winner and no one is a permanent loser. डेमोक्रेसी में हार या जीत का सवाल नहीं है. ओके, कि मैं क्या है, मैं जीत गया या एक ग्रुप जीत गया और एक ग्रुप हार गया. ओके, नो वन इज ए परमानेंट लूजर. ठीक, डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली. जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के साथ शांति पूर्वक रह सकते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ डेमोक्रेसी. इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर. These three arguments were about the effect of democracy on the quality of government and social life. ये जो 3 आर्ग्यूमेंट अभी हमने पढ़े, कौन कौन से 3? A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. पहला. दूसरा क्या है? Democracy improves the quality of decision making. तीसरा आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. ये जो 3 आर्ग्यूमेंट हमने डिस्कस किए, these were about the effect of democracy on the quality of government and social life. ये 3 आर्ग्यूमेंट किसके बारे में हैं? डेमोक्रेसी के बारे में, कि हाउ डेमोक्रेसी is all about the quality of government, कितनी अच्छी गवर्नमेंट है. ठीक है, और सोशल लाइफ यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लोगों की आम जिंदगी को कितना बेनिफिट है. बट
the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. It is about what democracy does to the citizen. Citizens के लिए democracy का क्या importance है? Who has joined with the name Prathamesh? Sir, there is one Prathamesh Bhoyar also. Prathamesh Bhoyar. Sir, but this is Prathamesh Vadaskar. Prathamesh Vadaskar कौन है? चंदना है क्या? Yes, sir. तो आज जब प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे ना, Yes. क्लास के बाद में टीचमेंट के प्रोफाइल सेक्शन में जाकर प्रथमेश का पी कैपिटल करना और उसमें ऑब्लिक के साथ चंदना लगा देना, प्रथमेश ऑब्लिक चंदना वडस्कर। तो जिस क्लास में चंदना वडस्कर ज्वाइन करेगी उस क्लास की क्लास टीचर चंदना की प्रेजेंट लगा देंगे, ठीक है। प्रथमेश के टीचर लगा देंगे। और भी अच्छा है, प्रथमेश डैश 11th A, प्रथमेश वडस्कर इज इन विच क्लास? Sir, 12th A. तो प्रथमेश डैश 12, उसके बाद में एक ऑब्लिक लगाना, फिर क्या करना, चंदना डैश 9, ठीक है। तो फिर आप लोग किसी भी क्लास को ज्वाइन करें, टीचर की अटेंडेंस उसके अकॉर्डिंग आ जाया करेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक। So it is all about what democracy does to the citizen. इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डेमोक्रेसी में कंट्री के सिटीजन को क्या बेनिफिट है, क्या फ्रीडम अवेलेबल है, ठीक। सो इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट better decisions and accountable government, it is still better than other forms of government. Democracy remaining form of government के comparison में ज्यादा better form of government है। Why? Because democracy enhances the dignity of the citizen. Democracy क्या करती है? देश के नागरिकों के dignity, मान सम्मान को सबसे ऊपर रखती है। मतलब बाकी के अवेलेबल अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में देश के नागरिकों का मान सम्मान सबसे अच्छा कहां पर रहेगा? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहेगा, ठीक। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या मानती है? डेमोक्रेसी ये मानती है कि गरीब से गरीब आदमी, कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वही स्टेटस मिलेगा जो किसको मिलेगा? रिच पीपल को। यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल में है ना, पॉलिटिक्स में गरीब से गरीब आदमी को, कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी रिच और एजुकेटेड पीपल के बराबर ट्रीट करती है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर। इस प्रकार देश के जो लोग हैं वो सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर यानी राजा की प्रजा नहीं है, बट दे आर रूलर देमसेल्फ। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। इसलिए इस देश में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है या बुरे काम कर रही है, आप मोदी गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हैं या नहीं है?
हर कंडीशन में who are responsible? The people of the country are responsible. Sorry बेटा. So इस देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पीपल ऑफ द कंट्री, देश के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है? बिकॉज द पीपल आर रूलर्स देमसेल्व्स इन ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में रूलर कौन है? पीपल ऑफ द कंट्री. ठीक, मोहिनी तुरंकर. Now, what is the meaning of this? इसका मीनिंग क्या है कि people themselves are rulers. So people themselves are ruler means जो गवर्नमेंट कंट्री में है, कंट्री की गवर्नमेंट किसके हिसाब से काम करेगी? पीपल ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट को किसने इलेक्ट किया है? Who elected the government? People of the country elected the government. Yes, Pooja Vidate, is my voice audible to you? Pooja, Soumya, Soni? Audible, sir. So even when the people make mistakes, they are responsible for their conduct. Okay, so जो लास्ट लाइन है वो क्या कह रही है? लास्ट लाइन इस बात को बताती है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को किसने इलेक्ट किया है? देश के लोगों ने इलेक्ट किया. यानी गवर्नमेंट किसने बनाई? Who made the government? People of the country made the government. So whatever the decision is taken by the government is basically considered as the decisions taken by the people of the country. सरकार क्या डिसीजन ले रही है, सरकार क्या काम कर रही है, वो कैसे कंसीडर किया जाता है कि these are the decisions taken by the people of the country. डिसीजन किसने लिया? देश के लोगों ने लिया. कार्तिकेय बुरघाटे, कार्तिकेय, हाँ ठीक है, ओके. So democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake. ठीक है? डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. क्यों है? Because it allows us to correct its own mistake. डेमोक्रेसी क्या करती है? देश के लोगों को अपनी गलतियां सुधारने का पूरा मौका देती है. Now this is what the fifth argument in favor of democracy. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो ये था हमारा कौन सा? फोर्थ आर्ग्यूमेंट. इसके ऊपर दिस इज व्हाट द थर्ड आर्ग्यूमेंट. ओके, एंड देन वी हैव आर्ग्यूमेंट नंबर 1. It is more accountable form of government. Second is improve the quality of decision making. Third one is what? It provides an method, okay, to deal with differences and conflict. So ये हमारे क्या हो गए? 5 arguments in favor of democracy. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistakes. Okay? Now, there is no guarantee that Sir? mistakes can. Yes, beta.
So like it is written here that democracy provides a method to deal with difference and conflict. Like if there is Yes. a fight between like two religions and government is separated from religion because like it can't interfere in these types of things. So sir, how do they means take the solution out if they want to means deal with the difference between these? Very good. Sandhya, the question that you would like to ask is that there is a conflict between the two religious groups. दो religious groups के बीच में कोई conflict है, and government of our country is a secular government. It means that government can't do anything, है ना? But secular government doesn't means कि government can't do anything. Secular government basically means that the government is not allowed to do favor of any one religious group. Okay. Now, while not favoring to one religious group, the democratic form of government have a process of debate and discussion. Democratic form of government में कौन सी प्रोसेस है? डिबेट और डिस्कशन की प्रोसेस है. जब ये डिबेट और डिस्कशन की प्रोसेस होती है तो इस डिबेट और डिस्कशन में बोथ द ग्रुप ऑफ पीपल, इट मींस जो दोनों रिलीजियस ग्रुप हैं, दोनों रिलीजियस ग्रुप्स को क्या अपनी अपनी बात कहने का, अपनी अपनी बात बताने का पूरा पूरा मौका मिलता है. ठीक है. तो किसी एक पर्टिकुलर इशू पर, किसी भी मुद्दे पर यदि विवाद है तो बोथ द रिलीजियस ग्रुप हैव बीन गिवन लॉट ऑफ टाइम टू स्पीक अबाउट देयर व्यूज. हर एक ग्रुप अपने व्यूज को, अपनी बात को प्रॉपरली रखेगा और उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी? डिसीजन लेगी. इवन if they are not satisfied with the decision given or taken by the government, in that case also, okay, the democracy provide a system of, in that case also democracy has provide the system of judiciary. democracy ने कौन सा सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है? जुडिशरी का. अब वो जो जुडिशरी का सिस्टम है, तो जुडिशरी में क्या होगा? जुडिशरी में लोग जो हैं, है ना, यदि वो रिलीजियस ग्रुप सेटिस्फाई नहीं है तो दे कैन गो टू द जुडिशरी. फिर जुडिशरी क्या करेगी? जितने सबूत हैं, जितने भी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए फिर उसका फाइनल डिसीजन रिजॉल्व करेंगे. जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अयोध्या इशू, राम मंदिर टेम्पल वाला मैटर था. यस सर. ठीक है. सो द केस वाज मोर देन, यदि ओरिजिनल केस देखा जाए तो ओरिजिनल केस जो है वो अंग्रेजों के जमाने से मैटर चला आ रहा है. कब से चला आ रहा है? ब्रिटिश रूल. अंग्रेजों के जमाने. ब्रिटिश. अब चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई तो नए सिरे से केस स्टार्ट हुआ. तो इस केस को देखें तो लगभग 65 to 70 इयर्स बीत गए, है ना. और केस लंबा चला. जब इतना पूरा केस 60-70 साल चला तो 60 साल तक दोनों पक्ष के लोगों को, both the Hindus and Muslims were given all the chances to prove that the land belongs to them. ठीक है. तो एक मुद्दा ऐसा है कि उसको रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने, डेमोक्रेसी ने कितने साल का समय दिया? 65 to 70, है ना. अब जब 60-70 सालों की पूरी खोजबीन हर एक के बाद में सारे सबूत इस बात को बताते हैं कि वो जो लैंड था
The land originally belongs to the Hindus sometimes back. ठीक है? So on the basis of evidences and the proofs collected through the archaeological survey, it was proved that the land belonged to one particular community, okay, because beneath that structure, जो स्ट्रक्चर उस समय का था, जो जमीन के ऊपर दिख रहा था, उसके नीचे पूरे के पूरे मंदिर के अवशेष और बाकी की चीजें बाहर निकली। तो उस कंडीशन ने उसने ये चीज प्रूव करी कि ये वाकई किसकी थी, दूसरे पक्ष की जमीन। तो हमें अयोध्या विवाद में नहीं पढ़ना है, हमारा तो इधर का मैटर है ना। हमारा मैटर क्या है कि डेमोक्रेसी क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का पूरा पूरा मौका दोनों पक्ष के लोगों को प्रदान करती है। ठीक, अब जो सबूत आते हैं, जो एविडेंसेस इकट्ठा होते हैं, जो प्रूफ्स मिलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोस एविडेंसेस एंड प्रूफ्स द फाइनल डिसीजन इज मेड। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. There is no guarantee that mistakes cannot be made in a country. Democratic form of government may be sometimes the government did the mistake. No form of government can guarantee that. The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for a long. ठीक, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गलतियां हो जाती हैं, हो सकती हैं। तो डेमोक्रेसी में भी कभी कभी गलती होती है। रिमेनिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी को छोड़कर बाकी की जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्या होगा, ये गलतियां छुपा दी जाएंगी। बट इन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दीज मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। बाकी की जो गलतियां हैं वो लंबे समय तक छुपती नहीं है। There is a space for public discussion on these mistakes. यदि गलती होती है, क्या होती है, गलती होती है, ठीक है, तो पब्लिक डिस्कशन, आम जनता के पास इन गलतियों को सुधारने का पूरा मौका होता है, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी हैज आल्सो रूम फॉर द करेक्शन। डेमोक्रेसी में गलतियों को सुधारने का पूरा पूरा मौका मिलता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी कम टू द राइट हैंड। द रूलर्स हैव टू चेंज द डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यदि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया है और यदि वो डिसीजन में कोई मिस्टेक है, गलती है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उस मिस्टेक को सुधार सकते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास ये पूरा पूरा मौका, पूरा पूरा चांस होता है, ठीक है। और यदि गवर्नमेंट अपनी गलतियां सुधार नहीं रही है ना, तो फिर देश के लोगों के पास मौका होता है कि व्हाट दे कैन डू, द रूलर्स कैन बी चेंज, ठीक है। सो रूलर यदि अपनी गलती नहीं सुधार रहे हैं, गवर्नमेंट यदि अपनी मिस्टेक्स नहीं सुधारती है, तो कंट्री के सिटीजन्स के पास मौका होता है कि वो किसको, रूलर्स को चेंज कर दें। अभी कैसे चेंज करेंगे? For example, you people think that the present government is not working properly. गौरव, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. अच्छे से सुनाई दे रही है? संध्या मूलचंदानी, are you able to listen me properly? Yes, sir. Speak loudly.
Yes, sir. अरे कितना नाश्ता किया नहीं किया? Sir, किया. अच्छा, हेल्दी वेल्दी संध्या। चलिए, सो यदि गवर्नमेंट है ना, जैसे रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, इसका मतलब क्या है कि हम ये मान लें कि रूलर्स जो हैं, गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, मिस्टेक करती है, ठीक है, तो या तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूलर्स को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, और यदि गवर्नमेंट डिसीजन चेंज नहीं कर रही है तो फिर हम किसको चेंज कर देंगे? Rulers. रूलर्स को। रूलर्स को हम कैसे चेंज करेंगे? Discussions and debates. नहीं, हम डिस्कशन और डिबेट तो करेंगे, परंतु हमारे पास रूलर को चेंज करने का 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, और वो मौका कब मिलेगा? वोट करके, इलेक्शन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. So यहाँ लिखा है the rulers can be changed, मतलब if we are not satisfied with the decision taken by the government, if we are not satisfied with the decision taken by the government, then what we can do? We can vote and change the rulers. We can vote and change the ruler, and that condition cannot happen or available in a non-democratic government. ये फैसिलिटी, ये सुविधा, ये कंडीशन किसमें अवेलेबल नहीं है? non-democratic गवर्नमेंट, है ना। हमें चाहे डिसीजन पसंद हो चाहे नहीं, हम रूलर्स को हटा नहीं सकते। हाँ सर, जैसे फिल्मों में, जैसे नायक फिल्म में जैसे एक दिन का सीएम बना दिया, तो सर ये सब भी होता है क्या असली में? बेटा, ये असल में होता तो नहीं है, बट इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल है, ठीक है। इट इज बेटा 8:44 है ना, so there is a time for the next class, so we will take up this question in tomorrow's live class. Sandhya, when we will join tomorrow, okay, please repeat these questions, we will have a good discussion on this one, okay. So that's all for today live class, friends. Thank you, goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.